हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि टाटा पंच की 366 लीटर की बूट स्पेस। एनीवे, अगर आप पंच लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस, फीचर्स और एक्सपेक्टेड प्राइसेस के बारे में बताएंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्ड्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। पंच के फ्रंटल डिजाइन की हाईलाइट इसका अपराइट और वाइड स्टांस है। इसका बॉनेट ग्राउंड से अराउंड 100 सेंटीमीटर ऊंचा है एंड द प्लास्टिक क्लैडिंग इज ऑल्सो थिक। सो डिस्पाइट बीइंग अ B1 सेगमेंट कार, इसकी फ्रंटल अपीयरेंस डोमिनेटिंग है। हैरियर की तरह इसके भी DRLs टॉप पे हैं, बट दीज डोंट इंक्लूड टर्न इंडिकेटर्स। इंडिकेटर बल्ब्स DRLs की इनर साइड पे हैं एंड वी वुड हैव लाइक डुअल फंक्शन DRLs here. Anyway, I like the plain upper grille. It's made of black plastic and it imparts an electric car vibe to the design. But I think इसकी फिटमेंट और बेटर हो सकती थी। पंच के हेडलैम्प्स बम्पर में हाउस्ड हैं। ये हैलोजन टाइप है, बट द लो बीम कम्स थ्रू अ प्रोजेक्टर लेंस और हाई बीम रिफ्लेक्टर टाइप है। हेडलैम्प हाउसिंग के साइड पे एयर फिन्स हैं, probably to aid aerodynamics. इसके नीचे क्लैडिंग में हैलोजन फॉग लैम्प्स हैं, तो इसका फुल बीम येलो है। Move to the side and there's thick cladding on the lower part of the doors. I personally think it visually helps cut down some metal bulk for the good. इसका rear door handle C-pillar में integrated है। It's around 4.5 feet above ground और इसे operate करना convenient है। Since this is the top creative variant, तो इसमें 16-inch machined alloy wheels आते हैं। I like the wheel design and although it's a B1 segment car, पंच पे ये wheel size appropriate लगता है। It's worth noting कि पंच में long antenna आता है, mounted towards the front on the roof, which looks dated. We would have liked अगर इसमें shark fin antenna आता। Before I move to the rear, I have to tell you कि इसमें puddle lamps भी आते हैं। Instead of being integrated in the ORVMs, ये doors की underside पे हैं, and these are useful. Anyway, move to the rear and I have to say that the Punch's design is appealing. Although इसके tail lamps काफ़ी छोटे हैं, but these extend towards the side और ये funky लगते हैं, especially with the LED light treatment. That said, इसके turn indicators regular bulbs ही हैं. I also like the surface treatment of the boot lid and around the tail lights. Boot का design simple है, but it's stylish. Also, like the front, rear में भी thick plastic cladding है, तो almost सभी sides से minor scratches at the lower end won't bother you. इसके rear bumper पे भी air fins हैं, but these are most likely cosmetic. Anyway, open the boot and you get 366 liter of space. यहाँ 4 लोगों का weekend luggage easily आना चाहिए। Boot floor के नीचे 15-inch spare टायर है और इसके अराउंड टायर इन्फ्लेटर रखने की स्पेस भी है, बट टाटा प्रोवाइड्स अ पंक्चर रिपेयर किट जो इसके बूट में ही स्ट्रैप्ड है। इसकी रियर सीट 60-40 स्प्लिट नहीं है, बट द बूट गेट्स 2 शॉपिंग हुक्स एंड अ लाइट। ओवरऑल I like the design of the Punch. इसके proportions अच्छे हैं, so much so that I won't mind calling it a small SUV. Given its size, I won't say कि इसका design imposing है, but yes, it does look pleasing to the eye. चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। टाटा पंच का केबिन all black है, but there's a white layer of rough texture on the dashboard as well as on the doors. इसके डैशबोर्ड पे सब जगह hard plastic है। I don't like the texture of plastic in general, but it doesn't look cheap by any standards. Talking of quality, तो इसके center console और glove box की fitment satisfactory है। Glove box cooled है और इसमें एक बड़ी bottle easily आ जाएगी, along with the owner's manual, जिसके लिए dedicated storage space है। इसके अलावा front doors में एक bottle और कुछ छोटा सामान और umbrella रखने की space है, और फ्रंट सीट्स के मिडिल में 2 कप होल्डर्स के अलावा एक पावर आउटलेट और की रखने की जगह है। इसके गियर लीवर के आगे भी एक बड़ा बिन है जिसमें मल्टीपल फोन्स रख सकते हैं। इसके पास USB पोर्ट और एक पावर आउटलेट है, सो देयर आर ऑप्शंस टू चार्ज मल्टीपल डिवाइसेस। इसके ऊपर ऑटो AC के फिजिकल कंट्रोल्स हैं और AC को इंफोटेनमेंट सिस्टम से भी ऑपरेट कर सकते हैं, ऑल्दो आई डोंट नो व्हाई एनीवन वुड डू दैट। एनीवे, इस 7-inch टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 4 स्पीकर्स और 2 ट्वीटर्स आते हैं, एंड द सिस्टम is adequately loud for this car.
ऑडियो सिस्टम को ड्राइवर लेफ्ट साइड स्टीयरिंग कंट्रोल से एक्सेस कर सकता है और स्टीयरिंग व्हील पे क्रूज कंट्रोल और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑपरेट करने के भी बटन्स हैं। टॉप वेरिएंट में लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील होने से इसका केबिन अप मार्केट फील होता है। इस वेरिएंट में पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आता है एंड इट गिव्स यूजफुल इंफॉर्मेशन। इट्स वर्थ नोटिंग के पंच के ड्राइव मोड्स इसके स्टीयरिंग के राइट साइड पे हैं और इसके अलावा ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से मैनुअल डे नाइट IRVM और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs नोटेबल फीचर्स हैं। आई समहाउ फील कि इसके पावर विंडो स्विचेस थोड़े छोटे हैं और केबिन लैम्प का ऑन ऑफ बटन थोड़ा फ्लिम्जी है। एनीवे, इसकी ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है और स्टीयरिंग व्हील में टिल्ट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। बिफोर आई हेड टू द रियर, आई हैव टू टेल यू कि इसकी ड्राइविंग पोजीशन अपराइट है एंड शॉर्ट ड्राइवर्स विल पर्टिकुलरली लाइक इट। टॉल ड्राइवर्स को शायद यहाँ लेग स्पेस थोड़ा टाइट लगे, बट मोस्ट ड्राइवर्स विल लाइक द फैक्ट कि इसका बोनेट, स्पेशली इसके साइड्स के फ्लेयर्ड पोर्शंस यहाँ से क्लियरली विजिबल हैं। नाउ दैट आई हैव सेट द ड्राइविंग पोजीशन टू माय लाइकिंग, चलिए देखते हैं इसके रियर में कितनी स्पेस है। पंच के डोर्स 90 डिग्री ओपन होते हैं और इसके रियर में इनग्रेस कंफर्टेबल है। आई थिंक 90 डिग्री डोर्स का बेनिफिट इग्रेस में ज़्यादा है बिकॉज यू गेट सम मोर लेग रूम टू स्टेप आउट। अंदर बैठ के द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस्ड इज द कुशन एट द बैक। ये मिड बैक पे थोड़ा ज़्यादा है एंड आई वुड हैव लाइक्ड इट मोर अगर ये लोअर बैक पे भी इतना ही होता। एनीवे, फ्रंट सीट को 5 फीट 8 इंच ड्राइवर की कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके यहाँ मेरे लिए काफ़ी लेग स्पेस है। इसके विंडोज़ एक्सेसिवली बड़े नहीं हैं और इसमें सनरूफ भी नहीं है, बट इसका केबिन फिर भी काफ़ी एयरी फील हो रहा है। यहाँ मेरे लिए हेडरूम एडिक्वेट है और इसका सीट बेस भी काफ़ी वाइड है, सो एज फार एज स्पेस इज कंसर्न इट इज़ सॉर्टेड। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से क्रिएटिव वेरिएंट में पावर विंडोज़, डोर पॉकेट्स, फ़ोन होल्डर, फ्रंट सीट बैक पॉकेट्स, एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स और आर्मरेस्ट नोटेबल फीचर्स हैं। I missed rear cabin lights and dedicated rear USB charger here. इसमें rear AC vents भी नहीं आते, but on this short drive where the outside temperature is just above 30 degrees, I didn't feel the need for them. Lastly, I think इस सीट पे 2 adults और 1 child ही comfortably बैठ पाएंगे। Overall, the one thing that I like about the Punch's interior is the sense of spaciousness, despite being a small car and having a black interior. In terms of volume, इसका boot spacious है, बट इसकी वजह से केबिन स्पेस कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसके केबिन में बैठ के आई डिड नॉट फील दैट आई एम सिटिंग इन अ कार दैट इज मेड टू अ प्राइस। और ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से, व्हाइल यू विल बी ड्राइविंग अ स्मॉल कार, यू विल गेट द SUV लाइक हाई सेट सीटिंग पोजीशन। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। पंच में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है दैट मेक्स 86 PS ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 113 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क। इस इंजन के साथ 2 ड्राइव मोड्स हैं, इको और सिटी। सिटी मोड इज़ फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड इको फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। इको मोड में डजंट फील मच रिस्पॉन्सिव, तो हमने इसे मोस्टली सिटी मोड में ही चलाया। इस मोड में सिटी ड्राइव के लिए इसका आउटपुट एडिक्वेट है। टाटा सेज डायना प्रो टेक के साथ इसकी लो स्पीड ड्राइवेबिलिटी इंप्रूव हुई है एंड सिटी स्पीड्स में हमें इसका पिकअप सफिशिएंट लगा, बट वी फेल्ट द लैक ऑफ परफॉर्मेंस एट हाईवे स्पीड्स। As far as the core engine is concerned, ये same engine Tiago और Altroz में भी आता है। It's a 3-cylinder engine, but I didn't feel too many vibrations in it. Although around 2000 RPM पे with light throttle, you do hear the engine noise inside the cabin. हम इसे अभी 5-speed manual transmission के साथ चला रहे हैं और इसकी powertrain की highlight इसका light clutch है, which will make it easy to drive. The gear shifts are smooth and I'm finding the car enjoyable to drive. हमने इस engine को AMT के साथ भी चलाया and here's how I felt when I drove it. Like the manual transmission, AMT में भी 5 gear ratios हैं और इसमें stick से manual gear selection का भी option है। हमने इसे auto और manual दोनों modes में चलाया and I felt कि इसके gear changes ज़्यादा quick नहीं हैं। ऑटो मोड में यू विल ऑल्सो फील सम हेड नॉड वाइल अपशिफ्टिंग, बट इसका इफेक्ट रिड्यूस हो सकता है वंस यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द ट्रांसमिशन। ऑटो मोड में अराउंड 2000 RPM पे अपशिफ्ट करता है एंड नॉट बिलो इट, इवन इफ यू आर cruising at a steady speed, and it doesn't even allow upshifts manually below 2000 RPM, which I felt a little annoying. However, downshifts करते हुए ये ज़्यादा intuitive है, so it understands when you need more power based on
हाउ मच यू प्रेस द एक्सेलरेटर, और उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीपल गियर्स भी डाउनशिफ्ट कर सकता है। AMT के साथ इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जिसमें माइल्ड ऑफ रोडिंग करते हुए ये स्पिनिंग व्हील को ब्रेक करके बेस्ट पॉसिबल ग्रिप ऑफर करता है। वी ट्राइड दिस फीचर एंड वी फील दैट इट्स ईजी टू यूज़। व्हील स्पिन डिटेक्ट करते हुए ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में ट्रैक्शन मोड एक्टिवेट करने का मैसेज देता है, जिसके बाद एक्सेलरेटर और ब्रेक को मॉड्यूलेट करके आप उस ऑब्स्टेकल को क्लियर कर सकते हैं। वी थिंक ट्रैक्शन कंट्रोल और हाई ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से पंच विल बी वन ऑफ द मोर केपेबल कार्स इन इट्स रेंज टू गो माइल्ड ऑफ रोडिंग इन। टाटा ने AMT को ऑल्टीट्यूड सेंसिटिव मैप भी दिया है टू बी इन द बेस्ट पॉसिबल गियर वाइल गोइंग अपहिल। एनीवे, हिल्स के लिए आप इसके गियर्स मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं थ्रू द गियर स्टिक। पंच में हिल स्टार्ट असिस्ट तो नहीं आता, बट AMT में क्रीप फीचर है, सो विद दिस ट्रांसमिशन एटलीस्ट हिल्स पे मोस्ट ड्राइवर्स को रोल बैक का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, since you can always modulate the throttle according to the climb. That's all about AMT. Let's go back to the manual car now. You know, the one thing that I liked about while driving this car is the ride. ये काफ़ी mature feel होती है despite being a B1 segment car. इसकी ride थोड़ी firm है, but it's not uncomfortable. Bad roads की undulations ये अच्छे से absorb कर रही है, and I'm liking it. The other likable thing is the steering wheel setup. Speeds पे, especially at higher speeds, इसकी heaviness अच्छी है and it maintains straight lines with little inputs from the driver. तो it has that big car feel to it. City या parking speeds पे ये light है, so it is easy to maneuver this car. लेकिन मुझे इसकी braking ने ज़्यादा impress नहीं किया. It is progressive, तो जितना ज़्यादा brakes को आप press करेंगे, उतना ही जल्दी कार decelerate होगी. But brakes में इनिशियल बाइट बहुत कम है, तो इन्हें प्रेस करते ही ऐसी फील आती है कि जैसे ब्रेक नहीं लग रही। ओवरऑल आई थिंक पंच का इंजन सिटी ड्राइव्स के लिए मोर देन एडिक्वेट है। इसका 3 सिलेंडर इंजन होने का मुझे मेजर ड्रॉबैक नहीं लगा, बट इट डज फील लैकिंग इन पावर एट हायर स्पीड्स। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद इट्स एबिलिटी ऑफ द रोड एंड राइड क्वालिटी। तो अगर आप इसे मेनली बैड रोड्स के लिए ले रहे हैं, देन इट्स अ गुड ऑप्शन कंसिडरिंग द एक्सपेक्टेड प्राइस। चलिए अब देखते हैं कि आपको पंच का कौन सा वेरिएंट बुक करना चाहिए। टाटा पंच में 4 वेरिएंट्स आएंगे: प्योर, एडवेंचर, अकम्प्लिश्ड और क्रिएटिव। इसके टॉप क्रिएटिव वेरिएंट के कुछ नोटेबल फीचर्स हैं: ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग लैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, 16-inch alloy wheels, roof rails, rear parking camera, defogger, LED tail lamps, leather wrapped steering wheel, cruise control, digital instrument cluster, auto AC, 7-inch touchscreen infotainment system, keyless entry with push button start stop, manual day night IRVM, height adjustable driver seat, adjustable rear headrests and rear armrest. पंच के सभी वेरिएंट्स एनालाइज करके हमें ये लगता है कि ऐसे बायर्स जो इसका कोई बेसिक वेरिएंट ही लेना चाहते हैं, उन्हें एडवेंचर बुक करना चाहिए, और जो बायर्स कोई फीचर रिच वेरिएंट लेने का प्लान कर रहे हैं, उन्हें क्रिएटिव बुक करना चाहिए। पंच की डिटेल्ड वेरिएंट्स एक्सप्लेन्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं, जिसमें हम पंच के एक्सपेक्टेड प्राइसेस भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। Being a B1 segment car, Punch is designed well to look like an SUV. It also has a commanding driving position और इसकी ride और mild off-road capability भी अच्छी है। इसका cabin spacious है and the top variant also includes useful, good to have features. We expect its prices to start from 5.40 lakh rupees and go up to 8 lakh rupees for the top variant with AMT. अगर इसका प्राइस इसी रेंज में होता है तो it will be one of the more practical and sensible cars to buy. और इसी के साथ खत्म होता है टाटा पंच का फर्स्ट ड्राइव रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके पंच से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके पंच से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।